سرائے عالمگیر تھانہ صدر کے باہر 2 گروپوں میں فائرنگ سے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے والوں میں عفت وقاص اور عدنان شامل۔ پولیس نے فائرنگ کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ زخمیوں کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تھانہ صدر شاہکوٹ پولیس کی کارروائی، ڈکیتی کی واردات میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضہ سے 3 لاکھ روپے سے زائد نقدی اور اسلحہ برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کامیاب کارروائی پر ڈی پی او نے ایس ایچ او مظہر حسین اور ہمراہی ٹیم کو شاباش دی۔ تھانہ فتح جنگ پولیس کی سماج دشمن عناصر کے خلاف کامیاب کارروائی۔ پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے 1 کلو گرام سے زائد چرس اور 10 لیٹر شراب برآمد کر لی۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ شورکوٹ میں ڈی سی جنگ محمد ارشد بھٹی کی ہدایت پر کھاد مافیا کے خلاف کارروائی۔ کھاد کی ذخیرہ اندوزی کو روکنے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر غلام سرور نے کارروائی کی۔ چھاپہ مار کر یوریا کھاد کی 301 بوریاں برآمد کر لی۔ اور پشاور میں ضلعی انتظامیہ نے بورڈ بازار میں کارروائی کرتے ہوئے گیس سینٹر کو سیل کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر پشاور شفیع اللہ خان کو اطلاع موصول ہوئی کہ بورڈ بازار میں گاڑیوں میں فون گیس بھری جا رہی ہے، جس پر انہوں نے علاقہ مجسٹریٹ کو فوری کارروائی کی ہدایت کی۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں احمد بلال منج۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کشمور پولیس کی سنیپ چیکنگ کے دوران کامیاب کارروائی۔ پنجاب کے رہائشی 4 لوگوں کو اغوا ہونے سے بچا لیا گیا۔ اے ایس پی کشمور محمد نعمان ظفر کے مطابق سستی گاڑی کا جھانسا دے کر ڈاکوؤں نے شہریوں کو پھنسانے کی کوشش کی، جس کو پولیس نے ناکام بنا دیا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ کشمور پولیس کی سنیپ چیکنگ کے دوران کامیاب کارروائی۔ پنجاب کے رہائشی 4 لوگوں کو اغوا ہونے سے بچا لیا گیا۔ اے ایس پی کشمور محمد نعمان ظفر کے مطابق سستی گاڑی کا جھانسا دے کر ڈاکوؤں نے شہریوں کو پھنسانے کی کوشش کی، جس کو پولیس نے ناکام بنا دیا۔ آپ کو بتائیں کہ کشمور پولیس کی سنیپ چیکنگ کے دوران کامیاب کارروائی۔ پنجاب کے رہائشی 4 لوگوں کو اغوا ہونے سے بچا لیا گیا۔ اے ایس پی کشمور محمد نعمان ظفر کے مطابق سستی گاڑی کا جھانسا دے کر ڈاکوؤں نے شہریوں کو پھنسانے کی کوشش کی، جس کو پولیس نے ناکام بنا دیا۔ آپ کو بتائیں گے کہ کشمور پولیس کی سنیپ چیکنگ کے دوران کامیاب کارروائی۔ پنجاب کے رہائشی 4 لوگوں کو اغوا ہونے سے بچا لیا گیا۔ اے ایس پی کشمور محمد نعمان ظفر کے مطابق سستی گاڑی کا جھانسا دے کر ڈاکوؤں نے شہریوں کو پھنسانے کی کوشش کی، جس کو پولیس نے ناکام بنا دیا۔ ایس ایچ او تھانہ غازی انسپیکٹر منیر خان کی ٹیم کی ہمراہ کارروائی۔ نعیم خان، گلزیب اور سعد رضا نامی ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ آپ کو بتائیں گے کہ ایس ایچ او تھانہ غازی انسپیکٹر منیر خان کی ٹیم کے ہمراہ کامیاب کارروائی۔ نعیم خان، گلزیب اور سعد رضا نامی ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ آپ کو بتائیں گے کہ ایس ایچ او تھانہ غازی انسپیکٹر منیر خان کی ٹیم کے ہمراہ کارروائی۔ نعیم خان، گلزیب اور سعد رضا نامی ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ شورکوٹ میں ڈپٹی کمشنر جنگ محمد ارشد بھٹی کی ہدایت پر قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری۔ 2 کنال سرکاری رقبہ واگزار کروا لیا گیا۔ آپ کو بتائیں گے کہ شورکوٹ میں ڈپٹی کمشنر جنگ محمد ارشد بھٹی کی ہدایت پر قبضہ مافیا کے خلاف کامیاب کارروائی جاری۔ 2 کنال سرکاری رقبہ واگزار کروا لیا گیا۔ ٹنڈوالہ یار پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں، ملزمان کو گرفتار کر کے 15 مسروقہ موٹر سائیکل اور دیگر سامان برآمد کر لیا گیا۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ آپ کو بتائیں گے کہ ٹنڈوالہ یار پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری، ملزمان کو گرفتار کر کے 15 مسروقہ موٹر سائیکلیں اور دیگر سامان برآمد کر لیا گیا۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ چنیوٹ تھانہ سٹی کے علاقے محلہ قادر آباد میں ڈاکوؤں کی
नाका लगाकर लूट मार। मोटरसाइकिल सवार डाकू शहरियों से नकदी, मोबाइल फोन्स और दीगर कीमती अशिया लूट कर फरार हो गए। आपको बताएंगे कि चन्योड़ थाना सिटी के इलाके मोहल्ला कादराबाद में डाकुओं की नाका लगाकर लूट मार। मोटरसाइकिल सवार डाकू शहरियों से नकदी, मोबाइल फोन्स और दीगर कीमती अशिया लूट कर फरार हो गए। मोरो पुलिस की कार्रवाई, अतर नामी कबाड़ी की दुकान से 20 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। मोटरसाइकिल को कब्जा में लेकर पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बताएंगे कि मोरो पुलिस की कार्रवाई, अतर नामी कबाड़ी की दुकान से 20 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सराय आलमगीर थाना सदर के बाहर 2 ग्रुपों में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में इफ़त, वकास और अदनान शामिल है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अजीज भट्टी अस्पताल गुजरात मुंतकिल कर दिया। आपको बताएंगे कि सराय आलमगीर थाना सदर के बाहर 2 ग्रुपों में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में इफ़त, वकास और अदनान शामिल है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अजीज भट्टी अस्पताल गुजरात मुंतकिल कर दिया है। थाना सदर शाहकोट पुलिस की कार्रवाई, डकैती की वारदात में मुलव्विस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जा से 3 लाख रुपए से जायद नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया। कामयाब कार्रवाई पर डीपीओ ने एसएचओ मुजर हुसैन और हमराही टीम को शाबाश देते हुए कहा कि अवामी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। शोरकोट में डीसी जंग मोहम्मद अरशद भट्टी की हिदायत पर खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाई। खाद की जखीरा अंदोजी को रोकने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर ने कार्रवाई की। छापा मारकर यूरिया खाद की 301 बोरियां बरामद कर ली। बस्ती भंगू से 40 बोरियां खाद की बरामद होने पर पटवारी को रिपोर्ट करने की हिदायत। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर का कहना है कि बरामद शुदा खाद को सरकारी निरखों पर सेल किया जाएगा। नाजायज मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी पर कार्रवाइयां जारी हैं। आपको बताएंगे कि शोरकोट में डीसी जंग मोहम्मद अरशद भट्टी की हिदायत पर खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी। खाद की जखीरा अंदोजी को रोकने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर ने कार्रवाई की। छापा मारकर यूरिया खाद की 301 बोरियां बरामद कर ली। बस्ती भंकू से 40 बोरियां खाद की बरामद होने वाले पटवारी को रिपोर्ट करने की हिदायत। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर का कहना है बरामद शुदा खाद को सरकारी निरखों पर सेल किया जाएगा। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में ज़िले इंतजामिया ने बोर्ड बाजार में कार्रवाई करते हुए गैस सेंटर को सील कर दिया। डिप्टी कमिश्नर शफीउल्लाह खान को इत्तला मौसूल हुई थी कि बोर्ड बाजार में गाड़ियों में फान गैस भरी जा रही थी, जिस पर उन्होंने इलाका मजिस्ट्रेट को फौरी कार्रवाई की हिदायत की। इस हवाले से एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सैयदा जैनब नकवी ने बोर्ड बाजार का मुआयना किया। बोर्ड बाजार में गैस सेंटर में गाड़ियों में फान गैस भरी जा रही थी, जिस पर मौका से मालिक को गिरफ्तार करते हुए गैस सेंटर को सील कर दिया गया है। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे और आपको बताएं कि फरीद एक्सप्रेस ट्रेन की किरायों में 80% इजाफे से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि फरीद एक्सप्रेस ट्रेन के किरायों में 80% इजाफे से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि 160 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये, जबकि मंडी उस्मान वाला से लाहौर का किराया 250 से बढ़ाकर 350 रुपये कर दिया गया है। मुसाफिरों ने किरायों में नुमाया कमी का मुतालबा किया है। थाना फतेहजंग पुलिस की समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 1 किलोग्राम से जायद चर्स और 10 लीटर शराब बरामद कर ली। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। आपको बताएंगे कि थाना फतेहजंग पुलिस की समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 1 किलोग्राम से जायद चर्स और 10 लीटर शराब बरामद कर ली। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। इस हवाले से आपको एक बार फिर बताएं कि थाना फतेहजंग पुलिस की समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कामयाब कार्रवाई।
पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 1 किलोग्राम से जायद चर्स और 10 लीटर शराब बरामद कर ली। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनूबी पंजाब साहिबजादा मोहम्मद शहजाद सुल्तान ने CPO मुल्तान शाकिर हुसैन के हमरा मुल्तान शहर के हिसास मुकामात का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। इस मौका पर एडिशनल IG और CPO का कहना था कि मुल्तान पुलिस की जानिब से हिसास और अवामी मुकामात पर सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए हैं। हिसास मुकामात पर इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। हर मशकूक गाड़ी और शख्स को सख्त चेकिंग के बाद शहर में दाखिल होने दिया जा रहा है। आपको एक बार फिर बताएं कि एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनूबी पंजाब साहिबजादा मोहम्मद शहजाद सुल्तान ने CPO मुल्तान शाकिर हुसैन के हमरा मुल्तान शहर के हिसास मुकामात का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। इस मौका पर एडिशनल IG और CPO का कहना था कि मुल्तान पुलिस की जानिब से हिसास और अवामी मकामात पर सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए हैं। हिसास मकामात पर अजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। हर मशकूक गाड़ी को और हर शख्स को सख्त चेकिंग के बाद शहर में दाखिल होने दिया जा रहा है। उकाड़ा पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ। DPO मोहम्मद फुरकान बिलाल ने 2022 की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। मज़ीद जानते हैं अदिल रशीद की रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फुरकान बिलाल की जानिब से पुलिस फोर्स उकाड़ा की साल 2022 की मुकम्मल कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। पुलिस फोर्स उकाड़ा ने साल 2022 में अवाम की जानो माल के हिफाजत करते हुए इंतहाई शानदार कारकर्दगी करते हुए अपने फ़राइज़ को अहसन तरीके से सरअंजाम दिया। इस साल में उकाड़ा पुलिस ने खतरनाक डाकुओं के साथ 16 मुबैना पुलिस मुकाबले किए, जिनमें 21 खतरनाक डाकुओं को वासले जहन्नम किया, जबकि 4 डाकुओं को शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। अपनी अवाम की जानो माल की हिफाजत करते हुए मोहम्मद आसफ जावेद कांस्टेबल ने जामे शहादत नोश किया। पुलिस ने डाकुओं के कब्जे से 6 करोड़ 56 लाख से जायद की नकदी भी बरामद की। पुलिस ने कारकर्दगी करते हुए 128 इश्तिहारियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 911 अदालती मफरूर और 124 आदि मुजरिम शामिल हैं। डिकेटी रॉबरी के मुकदमात में मुलव्वस 737 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 1260 नाजायज असला के मुकदमात भी दर्ज, जहां मुलजिमान से 158 राइफल्स 11,1111 पिस्तौल बरामद हुए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1390 बदनामे जमाना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से तकरीबन 13 किलो हेरोइन, 33 किलोग्राम अफीम, 51 किलोग्राम चर्स बरामद की। मुलजिमान के कब्जे से 23,283 लीटर देसी शराब और 3,730 किलोग्राम भंग बरामद की। पुलिस ने बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि रावलपिंडी में समाजी शख्सियत मलिक अजमल का अहसन इकदाम। ढोक हिस्सों के मकीनों के लिए नादरा वैन का इंतजाम किया। इलाका मकीनों ने अपने शनाख्ती कार्ड बनवाए। मजीद जानते हैं नुमान चौधरी की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी ढोक हिस्सों में मुमताज सियासी व समाजी शख्सियत मलिक अजमल ताज लाला इजहार और वहीद खान साफी की जानिब से अहले इलाका के बुजुर्ग और ख्वातीन के लिए नादरा वैन का इंतजाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में अहले इलाका के लोगों ने अपने शनाख्ती कार्ड्स और सर्टिफिकेट वगैरह बनवाए। इस मौका पर मलिक अजमल ताज, काजी दोस्त मोहम्मद, लाला इजहार और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हम अपनी टीम की जानिब से हर माह में एक मरतबा बुजुर्गों और ख्वातीन के लिए नादरा की गाड़ी मंगवाते हैं और यहाँ पर अहले इलाका के लोगों को सहूलियात मुहैया करते हैं। मलिक अजमल ने मजीद कहा है कि इस महंगाई के दौर में हम समझते हैं कि लोगों को किराए लगा कर जाने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उधर लाइनों में ये बुजुर्ग और ख्वातीन ज़लील व ख्वार होते रहते हैं। अवाम की सहूलियत के लिए हमने ये इकदाम उठाया है। इसके अलावा भी इलाके के तरक्याती कामों में हम जदोजहद कर रहे हैं।
اس موقع پر اہل علاقہ نے ملک اجمل تاج اور دیگر کا شکریہ ادا کیا اور علاقے کے لیے ان کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا. کیمرہ مین فتح جنگ میں سوشل ویلفیئر کونسل کی زیر نگرانی ایک روزہ فری میڈیکل وائی کیمپ کا انعقاد کیا گیا. ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم نے مریضوں کا مفت چیک اپ کیا اور دوائیات اور اینکیں فراہم کی. کیمپ میں ہیپاٹائٹس بی، سی اور شوگر کے بھی ٹیسٹ کیے گئے. آپ کو ایک بار پھر بتائیں گے کہ فتح جنگ میں سوشل ویلفیئر کونسل کی زیر نگرانی ایک روزہ فری میڈیکل وائی کیمپ کا انعقاد کیا گیا. ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم نے مریضوں کا مفت چیک اپ کیا اور ادویات و اینکیں فراہم کی. کیمپ میں ہیپاٹائٹس بی، سی اور شوگر کے بھی ٹیسٹ کیے گئے. سرسوں کا ساگ موسم سرما کا خاص پکوان ہے. رحیم یار خان میں بھی شہری سرسوں کا ساگ اور مکئی کی روٹی خوب شوق سے کھاتے ہیں. مزید جانتے ہیں عبد الغفار مہر کی رپورٹ میں. موسم سرما کی سوگات سرسوں کا ساگ یاری آسان کام نہیں. پہلے مرحلے میں سرسوں کی کھیت سے بڑی مہارت سے کچی گندلیں توڑی جاتی ہیں، پھر ان کو بڑی نفاست سے کاٹ کر پکایا جاتا ہے، پھر ایک مندھانی کی مدد سے کافی دیر تک ہانڈی کو ہلایا جاتا ہے، تب جا کر یہ دیسی سوگات تیار ہوتی ہے. سب سے پہلے زمین سے اس کو کاٹ کے لے آتے ہیں، اس کے بعد اس کی دھلائی کرتے ہیں، اس کو بعد اس کو پانی ابال کے آگ پہ چڑھا دیتے ہیں، اس کو بعد پکا کے 5-6 گھنٹے کے بعد یہ تیار ہو جاتا ہے. ساگ تو بن گیا، اب باری ہے اسے کھانے کی. ساگ کو مکھن کا تڑکا لگا کر دوستوں کے ساتھ مل کر جب ساگ کو چاول اور مکئی کی روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں تو ساگ کھانے کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے. یہ ساگ جڑا ہے سردیاں دی سوگات ہے تے اے کو زیادہ تو زیادہ استعمال کرنا چاہیے. اج اساں اتھا جڑا چاولاں دی روٹی، مکئی دی روٹی دے نال ساگ دا استعمال کیتے سے تے اے بہت اچھی خوراک ہے. ان واسطے میں دعوت دیساں لوگوں کو کھیساں کہ اے ساگ دا سردیاں دے وچ زیادہ تو زیادہ استعمال کیتا کرو تاکہ تمہاری صحت واسطے بہت اچھی خوراک ہے. ساگ جو سردیوں کی یہ بہترین سوغات ہے اور سردیوں کے موسم میں جو ہے ہم یہ بہترین شوق سے کھاتے ہیں اور جو ہمارے شہر کے دوست ہیں وہ بھی ہم سے منگواتے ہیں اور ہم ان کو تحفے کے طور بھی بھیجتے ہیں. اور اگر سردیوں کے موسم میں ساگ کے ساتھ دیسی مکھن میسر ہو جائے تو کھانے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. سرسوں کا ساگ جہاں سردیوں کی سوگات ہے تو وہیں پر ہر بیماری سے بھی مفید ہے. شہر سے دور پرسکون دیہی ماحول میں دیسی گھی سے تیار ہونے والے ساگ کو جب چاول کی روٹی سے کھایا جاتا ہے اور ساتھ میں مکھن ہو تو شہری انگلیاں چاٹتے رہ جاتے ہیں. سردیوں کی سوگات ساگ، دیسی مکھن، چاول اور مکئی کی روٹی کے ساتھ. سرگودا جم خانہ کلب کے نو منتخب جنرل سیکرٹری محمد وسیم کا کہنا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کر شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرے. مزید جانتے ہیں اس حوالے سے سردار محمود ڈوگر کی اس رپورٹ میں. نو منتخب جنرل سیکرٹری جم خانہ کلب محمد وسیم بھلی کا کہنا ہے کہ آج تک سرگودا کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم میسر ہی نہیں آیا کہ تمام سٹیک ہولڈر ایک پلیٹ فارم پر متحد ہوں اور شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے مل کر کام کریں. جم خانہ کے پلیٹ فارم سے کوشش کریں گے کہ چیمبر آف کامرس، ڈسٹرکٹ بار، پریس کلب و سیاسی سماجی اداروں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، تب ہی سرگودا ترقی کی طرف گامزن ہوگا. جب تک ہم ایک نقطہ پر متحد نہیں ہوں گے ہمارا شہر ترقی نہیں کر سکتا. انہوں نے مزید کہا کہ ڈپٹی کمشنر سرگودا لیاقت علی چٹھا نے سرگودا جم خانوں کو جدید سہولیات سے آراستہ کیا. میری کوشش ہے کہ ان کی روایات کو آگے بڑھاتے ہوئے جم خانہ میں ایسی وہ تمام سہولیات فراہم کریں جو خصوصاً ہمارے ممبران کو میسر نہیں ہیں. میری ترجیحات میں یہ بھی شامل ہے کہ جم خانہ ملک بھر کے جم خانوں میں ایک منفرد جم خانہ ہو جیسے سرگودا شہینوں کے شہر کے حوالہ سے ایک الگ پہچان رکھتا ہے. آر پی او بہاولپور منیر احمد کی ڈی پی او آفس آمد، پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی. آر پی او آفس کے مرمتی کام کا جائزہ بھی لیا. مزید جانتے ہیں فضل جاوید خان کی رپورٹ میں. آر پی او بہاولپور منیر احمد ضیاء کی ڈی پی او آفس آمد پر پولیس کے دستے نے انہیں سلامی دی. آر پی او نے اچھی سلامی دینے پر سلامی دینے والے دستے کو محکمانہ دریوی سرٹیفکیٹ 2cc دینے کا اعلان کیا. آر پی او نے ڈی پی آفس بہاولپور کی چیکنگ کے دوران تمام دورہ کیا، آفس ریکارڈ کو چیک کیا، ڈی پی آفس میں ہونے والے مرمتی کام کا بھی جائزہ لیا. آر پی او نے ڈی پی او سے میٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ تمام صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے میرٹ سروس ڈیلیوری شہریوں کی جان و مال عزت کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے. ڈی پی آفس میں کیمپ میٹنگ سسٹم سے بھرپور فائدہ حاصل کریں. اس سسٹم کی بدولت تھانے میں موجود حوالات فرنٹ ڈیسک روم کی کڑی نگرانی کریں. پولیس خدمت مراکز جو کہ تقریباً تمام سرکل میں کام کر رہے ہیں
बाकायदा चेक करें, वहाँ पर दी जाने वाली सहूलियत का भी जायजा लें ताकि शाहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत फराहम की जा सके। स्मार्ट आई इंदराज कराया नामा, ई पुलिस पोस्ट और दीगर ऐप्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब के विज़न के मुताबिक पुलिस अफसरान व अहलकारान के मसाइल तरजीही बुनियाद पर हल करें। जब तक कि हम इनके मसाइल हल नहीं करेंगे ये अपना काम बेहतर अंदाज में नहीं कर सकेंगे, इसीलिए इन पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें ताकि पुलिस के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाया जा सके। RPO ने मज़ीद कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से तफ्तीश के म्यार को न सिर्फ बेहतर बनाया जा सकता है बल्कि इसकी मदद से असर मुलजमान को कानून से सख्त सजाएं दिलाई जा सकती हैं। मैनुअल और ऑन रिकॉर्ड की तकमील में बोकस फीडिंग और किसी किस्म की गफलत को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी भी पुलिस अफसर की तरफ से किसी जुर्म के सर्द होने की सूरत में FIR के अंदराज में तखीर किसी की भी बेगुनाह शख्स को हिरासत में रखना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिकायत की सूरत में सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस और शोधा के वर्षा के जायज़ मसाइल हंगामी बुनियाद पर हल करवाएं। RPO ने DPO इबादत निसार के ज़िला भर में क्राइम कंट्रोल के हवाले से अपनाई गई पॉलिसी को सराहा। DPO भावलपुर से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी पहली तरजीह है। थाना कल्चर में तब्दीली अवाम और पुलिस के दरमियान फासलों को दूर करने के लिए दिन रात कोशिशें हैं। दीगर समाजी बुराइयों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हुए मनशियात फरोशों, जुआ वगैरह और संगीन जराइम के खिलाफ भी भरपूर क्रैकडाउन किया जाए। मज़ीद खबरों को शामिल करें और आपको बताएं कि कोहाट में डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स डॉक्टर मोहम्मद साद ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ अब्दुल रऊफ खटक, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल अकबर अली और डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर कोहाट अमजद आफरीदी के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल कोहाट का दौरा किया, जहां उन्होंने जेल, अस्पताल और लंगर खाने का मुआयना किया। उन्होंने कैदियों के लिए सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। कैदियों से जेल में दी जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ अब्दुल रऊफ ने कहा कि कानून के मुताबिक कैदियों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। डिशकोट में मेडिकल स्टोर पर डकैती की वारदात, डाकू 1.5 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। नवीद नामी शहरी से 25,000 रुपए और मोबाइल फोन भी छीन लिया गया। पुलिस बढ़ते हुए जराइम पर काबू पाने में नाकाम, शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार होने लगे। नारंग मंडी में कोट भेला हेडवर्क्स रोड मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी के सरहदी इलाका को जाने वाली वाहिद कोट भेला हेडवर्क्स रोड बरसहा बरस से मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। सफ़र करना इंतहाई दुश्वार गुजार हो चुका है। मज़कूरा रोड नारमंडी के 100 से ज़ायद सरहदी देहात की वाहिद गुजरगाह है। रोज़ाना सरहदी इलाका से हज़ारों लोग और तलबा तालबा शहर आते और जाते हैं। रोड मुकम्मल नकारा होने की वजह से सफ़र करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। हादसात और डकैती में भी इजाफा हो चुका है। ये इज्तिमाई मसला है जो अरकान असम्बली को नज़र नहीं आ रहा। आइए सुनते हैं मुतासिरीन की ज़ुबानी। जी इलाके ने जी कोट भैणा वाली सड़क है जगह तो टुटी है तो उन्होंने तकरीबन 20-25 साल होए बनया किसी बनाई नहीं। राह खड्डे ने रक्शे मोटरसाइकिल लोग उत्थे खराब लुटन वाले भी ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਬਣਾਉਣ, ਬਲਕਿ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੋੜ ਮਾ ਪੱਸੀ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਗਾਂ ਅਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮੀਰੋਵਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸੇ ਟੁੱਟੀ ਸਾਰੀ। ਮੰਡੀ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜੇਤੋਗਾਲਾ ਭੈਲਾਕੋਟ ਰੋਡ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬਣਿਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਖੱਡੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਰਕਸ਼ੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ सोचो। मुटियारी के मोहल्ला मीर हसन में इंतजामिया की नाअहली से अवाम परेशान। पानी की पाइपलाइन टूटने से कई घर मुतासिर होने का अंदेशा है। मजीद जानते हैं अली फैजान की इस रिपोर्ट में। मटियारी में पब्लिक हेल्थ इंतजामिया की नाअहली के बायस मटियारी शहर के मीर हसन मोहल्ला में पानी की पाइपलाइन टूटने के बायस अहले इलाका के कई घर गिरने का अंदेशा और घरों में जगह जगह पर दरारें पड़ गई, जिसके बायस अहले मोहल्ला शदीद परेशानियों से दो चार हो गए कि पाइपलाइन टूटने से ख्वातीन, स्कूली बच्चे और नमाजी समेत इलाका मकीनों को आने जाने में शदीद दुश्वारी का सामना करने पर मजबूर हो गए।
मगर पब्लिक हेल्थ इंतजामिया अपने ख्वाबो खरगोश में मगन है। अवाम अजियत में मुब्तला हो गए। उस मौके पर अहले इलाका जैसे गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जान जो नुकसान थियो आहे पुराणा पाइप लॻल लोह जा माण्हुनि जा कनेक्शन उन्हनि मां विया आहिनि। असां चवंदा असांजो बिलो थिए भला जी न भला किरनि भले गवर्नमेंट कुझु थिए। पाइप असांजा सॼा टुटा पिया आहिनि ऐं जेको लाइनूं सॼियूं टुटी पियूं आहिनि। पाणी सॼे जॻहियुनि में पियो वञे। इंतज़ाम टावर में असां दरख़्वास्त जमा करायूं को टावर तमामु तकलीफ़ आहे। राति जो ॿार बच्चो नियाणी साणी हर को फ़ैको करे थो। माण्हू नुक़सानु थियो आहे। पलनि में लॻा पाइप हितां आया आहिनि जेके अंदरि कटिजी विया आहिनि। वॾो पाइप पए थो। तमामु घणो नुक़सानु थियो आहे हिन पाड़े जो। महिरबानी करे इहा असांखे टाउन वारा कुझु करे ॾियनि। वो यादे ते प्लास्टिक जो पाइप लॻायो वञे ग़रीबनि सां इंसाफ़ कयो वञे। अहले इलाका ने कमिश्नर हैदराबाद, डिप्टी कमिश्नर मटियारी और आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा है कि हमारा। आपको बताएं कि डेरा गाजी खान और सखी सरवर में सरकारी आटा नायाब हो गया। शहरी सस्ते आटे के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। दिहाड़ीदार और मजदूर तबका आटा नायाब होने के बायस बेहद परेशानी का शिकार हो गए। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से आटे का बहरान ख़त्म करने का मुतालबा किया है। आपको बताएं कि डेरा गाजी खान और सखी सरवर में सरकारी आटा नायाब हो गया। शहरी सस्ते आटे के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करने से दिहाड़ीदार और मजदूर तबका आटा नायाब होने के बायस बेहद परेशानी का शिकार हो गए। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से आटे का बहरान ख़त्म करने का मुतालबा किया है। भवाना में भी बढ़ती हुई महंगाई से आवाम परेशान। चिकन और मटन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मजीद जानते हैं मलिक जाफिर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, भवाना और गिरदोनवा में चिकन की कीमत में बेताशा इजाफा हो गया है। साल के शुरू होते ही चिकन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जो कि गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर होता जा रहा है। इस हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उससे बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन की कीमतें जो है आए दिन बढ़ रही हैं। आज का जो रेट है चिकन वो 525-30 यहाँ शहर भवाना का रेट है और देहातों में इससे भी ज्यादा है। इसकी बड़ी वजह ये है कि ये जो गवर्नमेंट ने जो फीड इनको फीड मुर्गों को नहीं मिल रहा, वो खुराक उनकी एयरपोर्ट बंदरगाहों पे रोकी हुई है। इसकी वजह से यहाँ पे आए दिन जो है पोल्ट्री फार्म वाले ये जो आए दिन जो है ये इसकी कीमतें बढ़ा रहे हैं और हर दिन जो है 10 से 15-20 रुपए ये मुर्गा ऊपर जा रहा है। गरीब लोग जो है यहाँ पे पहले वो मटन और बीफ पहले उनकी पहुंच से बाहर है और अब ये चिकन का एक आसरा था वो भी जो है गवर्नमेंट से छीन रही। गवर्नमेंट जो है ये उस माफिया के आगे बेबस है, इसकी वजह से गरीब आवाम पिस रही है। हमारी तो ये वजीर आला वजीर आजम से गुजारिश है कि ये जो है इन पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और इनकी। हाला में भी बढ़ती महंगाई से शहरी परेशान। अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मजीद जानते हैं अमजद राजपूत की रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह हाला शहर में भी बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी। आटा 140 रुपए, मुर्गी 600 रुपए, चीनी 110 रुपए, ऑयल 500 रुपए, दूध 160 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। हालांकि आवाम ने कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए कहा कि यार मेरा पेट बहुत कम आ रहा है और खर्चा जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है। अभी देखो ना, आप खुद देखो चीनी कितने 90 रुपये किलो हो गई और तेल 500-600 रुपये किलो और आटा भी 150-140 रुपये। दुकानदार के पास जाएं तो दुकानदार अपनी जगह पे ये हो गया वो हो गया। अब हम गरीब आदमी कहाँ जाएं? हमारा तो यही कारोबार है जो हमारे 10-20 रुपये 5-10 रुपये बचते हैं चीज़ पे। अब घर के खर्चे इतने ज़्यादा, अब बीमारी है। सर हम गरीब आदमी हैं, 500 रुपये कमाते हैं, उसमें पूरी नहीं होती है। 10-12 बच्चे हमारे छोटे बड़े, उसमें रोज़ी हमारी नहीं मिलती है। आटा बहुत महंगा है, गरीब आदमी है। कुछ आटा ये मशीन पे जाओ तो वो कह रहे हैं कि 150 रुपये किलो, तो गरीब आदमी कहाँ जाएं? अगर ये रोड फुरेंगे और धारा मारेंगे, डाका मारेंगे और क्या करेंगे? हमें तो रिटायरमेंट आदमी, हमारे तो तनख्वाह भी पूरी नहीं हुई है। ये दूध है, दूध 160 रुपये किलो बिका रहे हैं और ये चीनी है, चीनी भी 140 रुपये किलो बेच रही है और दुकान वाला अपना अगला कर रही है, वो जो है अपने अपने अगला बता रहे हैं। तो गरीब आदमी कहाँ से जाए? महंगाई से परेशान हालांकि शहरियों ने हुकूमत वक्त से बढ़ती हुई महंगाई पर फौरी कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया।
शांगला के नवाही इलाके में पीटीआई शमूलियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई और दीगर ज़िलाई कायदीन ने खिताब किया। मज़ीद जानते हैं गाजी अहमद की रिपोर्ट में। शांगला की वादी शाहपुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शमूलियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। तकरीब में सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई व दीगर ज़िले कायदीन और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। शमूलियती तकरीब में साबिक इनवाईओ के चेयरमैन नोमान खान अपने साथियों समेत अवामी नेशनल पार्टी से मुस्ताफी होकर तहरीक इंसाफ के काफिले में शामिल हो गए। शमूलियती तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई का कहना था कि शांगला में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सयाती स्पाट कापर बांडा और ब्रज बांडा तक रसाई के लिए अरबों रुपए के तखमीन लागत से सड़कों पर तामीराती काम शुरू किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने शांगला में यूनिवर्सिटी का क़याम यकीनी बनाया, जो कि यहाँ के गरीब तलबा का एक दीरीना मुतालबा था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने शांगला में सेहत, तालीम और सयाहत के मैदान में इनकलाबी इक़दाम उठाए हैं और पसमानदा जिला शांगला को तरक्की की राह पे गामज़िन किया है। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने अपोजिशन पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने रिकॉर्ड तोड़ महंगाई से गरीब और मुतवस्सित तबके को फाका कशियों पर मजबूर कर दिया है। हुक्मरान मुल्की निज़ाम चलाने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। मुल्क डिफाल्ट की तरफ जा रहा है। फौरी शफाफ इलेक्शन तमाम मसाइल का वाहिद हल है, लेकिन पीडीएम हुकूमत फ्रेश मैंडेट से घबराती हुई इलेक्शन। पत्तों की में फूड इंस्पेक्टर, एएफसी और सुपरवाइजर की मुबैना मिली भगत से गंदुम में मिलावट की जाने लगी। गंदुम को मिट्टी और पानी की मिलावट करके फरोख्त किया जाने लगा। फुटेज मंजर आम पर आने के बावजूद ज़िला इंतजामिया और मुतल्लका महकमा के अफसरान खामोश तमाशाई बन गए। हकाइक सामने लाने पर फूड इंस्पेक्टर की जानिब से सहाफ़ियों को संगीन नताइज की धमकियां दी जाने लगी। छांगा मांगा में तहसील इंतजामिया और महकमा फूड ने हुकूमती रेट पर आटा फराहम करने के लिए 5 पॉइंट्स मुकर्रर कर रखे थे, जिन्हें ख़त्म करके अब सिर्फ 1 पॉइंट पर आटा फरोख्त किया जा रहा है, जहां पर सैकड़ों मर्दों खवातीन लाइनों में लगकर आटे के हसूल के लिए अखबार होने लगे। शहरी शदीद सर्दी में कई घंटे खड़े होने के बाद 10 या 20 किलो आटे का थैला हासिल करते हैं और मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का हसूल मुमकिन बन पाता है। शहरियों का कहना है असिस्टेंट फूड कंट्रोलर ने आटा पॉइंट ख़त्म करके अवाम को शदीद जहनी अजियत में धकेल दिया है। अवामी समाजी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब, डीसी कसूर और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। एसएचओ थाना सिटी जामपुर मोहम्मद अख्तर ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। एसएचओ ने सहाफ़ियों से तारीफ़ी मीटिंग के जिसमें जराइम की रोकथाम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर मोहम्मद अख्तर का कहना था कि जराइम की शरह में आबादी के तनासुब से इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल 16 से 87 मुकदमा दर्ज हुए, जो कि बड़ा इजाफा है। उनका कहना था कि डीपीओ राजनपुर अहमद मुहय्युद्दीन जराइम की रोकथाम के लिए दिन रात कोशा है। थाना सिटी जामपुर में मुझे खसूसी टास्क दिया गया, जिसे पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। लिया शहर में जगह जगह नशे के आदी अफराद के डेरे, पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। मजीद जानते हैं मलिक फैज बुलर की इस रिपोर्ट में। कानून नाफिज करने वाले इदारों की चशम पोशी और मुआशरे की बेहिस्सी ने मनशियात फरोशों को एक ऐसा नासूर बना दिया जो हर रोज किसी न किसी माँ की गोद बुढ़ापे का बहावलपुर में रेस्क्यू ऑफिसर बाकिर हुसैन की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। साल 2022 की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। मज़ीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। पंजाब में सही रेस्क्यू 1122 बहावलपुर ने साल 2022 की कारकर्दगी के तमाम मदद कामयाबी से मुकम्मल किया है। इन ख्यालत के हजार डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर बहावलपुर बाकिर हुसैन ने 2022 की कारकर्दगी सालाना इजलास की सदारत करते हुए किया। गुज़श्ता साल कारकर्दगी बताते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर कंट्रोल रूम ने गुज़श्ता साल 2,41,252 फ़ोन कॉल मसूल की, जिनमें से 75,062 कॉल एमरजेंसी से मुतल्लिक थी, जिन पर जाए को पहुंचने का औसत टाइम 8 मिनट रहा। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर बहावलपुर बाकिर हुसैन ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2022 के जो साल गुजर गया, इसमें रेस्क्यू 1122 ने तकरीबन 75,000 के करीब जो एमरजेंसी कॉल्स को रिस्पॉन्ड किया है और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कॉल रिसीव हुई है उसको प्रॉपरली चेक किया गया, हैंडल किया गया और टाइम पे उसको रिस्पॉन्ड किया गया। और इसके साथ साथ बताते चले कि 75,000 में से हमारे पास तकरीबन 12,000 के करीब जो थे वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट थे और रिमेनिंग हमारे पास 53,000 जो थे वो मेडिकल एमरजेंसीज थी। इसके साथ फायर के केसेस मैक्सिमम रिपोर्ट हुए
और उसके साथ साथ जो हमारा पेशेंट ट्रांसफ़र सर्विस थी, जो हमारे लोअर हेल्थ फैसिलिटी से हायर हेल्थ फैसिलिटी पे पेशेंट्स को रेफ़र किया अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारी तादाद 8,000 के करीब थी। इसके साथ साथ जो हमारा एवरेज रिस्पांस टाइम रहा हर घर पेशेंट तक पहुंचने में, वो हमारा जो एम्बुलेंस का 8 मिनट रहा और मोटर बाइक का हमारा तकरीबन 4.3 मिनट्स का था जो हमने एमरजेंसीज को रिस्पॉन्ड किया। इसके साथ साथ हम बताते चलेंगे जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का जो हमारे पास बहुत बड़ी फिगर है जिसमें लोग डेड हुए मुख्तलिफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, वो तकरीबन हमारे पास 129 थे। तो ये लोगों से गुजारिश है कि देखें 129 बहुत बड़ा फिगर है जो एक डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। तो जी, उसके साथ साथ मेरी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ट्रैफिक के रिलेटेड जो भी अब स्पेशली मोटर बाइक का मैक्सिमम नंबर होता है, तो लोग उसकी स्पीड 30-40 से ज़्यादा ना रखें और इसके साथ हेलमेट यूज़ करें और ट्रैफिक रूल को फॉलो करें। और साथ साथ अभी जो कोविड का भी जो नई लहर आने का ख़तरा है, तो इसलिए लोगों से ये भी गुजारिश है कि प्रॉपर मास्क पहने और डिस्टेंस रखें, ताकि जैसे हमने इसको पहले इसका मुकाबला किया और अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूचर में भी इसको इसी तरह से निपटें। कैमरामैन खुर्रमशदाद के साथ फजल जुवैद खान। रहीम यार खान में असिस्टेंट कमिश्नर सरमद भागत का सब्जी फार्म का दौरा, ASP शाहजेब चाचड़ भी हमरा थे। मजीद जानते हैं अब्दुल गफ्फार महर की रिपोर्ट में। ASP सर्कल सादिकाबाद शाहजेब चाचड़ का असिस्टेंट कमिश्नर रहीम यार खान सरमद भागत के हमरा MBAF एग्री फार्म यूनिट 1 और हेड ऑफिस जमा दिनवाली का दौरा। मखदूम मोहम्मद हुसैन बाफकी भी हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर रहीम यार खान सरमद भागत ने मखदूम सैयद मोहम्मद हुसैन बाफकी के MBAF फार्म में सब्जियों की काश्त का जायजा लेने के लिए दौरा किया और सब्जियों की जदीद तरीके से काश्तकारी और मुल्की खपत को पूरा करने और इलाका में सैकड़ों अफराद को रोजगार की फराहमी पर न सिर्फ खुशी का इजहार किया बल्कि मखदूम मोहम्मद हुसैन बाफकी की खिदमात पर भी खराज तहसीन पेश किया। और इस मौका पर ASP सर्कल सादिकाबाद शाहजेब चाचड़ ने फार्म पर मौजूद जदीद सिक्योरिटी निज़ाम नस्ब कैमरों का जायजा लिया। उन्होंने MBAF एग्री फार्म को जदीद अंदाज से लेस सिक्योरिटी निज़ाम को सराहने के साथ साथ इलाका में अमन की सूरत हाल को बेहतर बनाने और जराइम पर काबू पाने और कैमरों के जदीद सिस्टम पर तसल्ली का इजहार किया। मखदूम मोहम्मद हुसैन बाफकी की अमन काविशों और आइंदा मजीद बेहतरी लाने और सिस्टम को जिद्दत लाने के लिए भरपूर ताउन की भी यकीन दहानी करवाई। शाहजेब चाचड़ का मजीद कहना था, ऐसे जहां पुलिस जराइम पर काबू पाने के लिए कोशिश है, वहां अगर ऐसे मुखैर हजरात अगर पुलिस के शाना बशाना खड़े होकर हाथ बटाए तो जराइम पर काबू पाने में आसानियां पैदा हो सकती हैं। MBAF फार्म जहां जरी एतबार से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है, वहाँ सिक्योरिटी और क्राइम कंट्रोल में भी ऐसा रोल मॉडल का किरदार अदा कर रहा है। इंशाल्लाह मखदूम मोहम्मद हुसैन बाफकी इसी तरह अवामी खिदमत का मिशन जारी रखेंगे। संजरपुर में असिस्टेंट कमिश्नर का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, गिरां फरोशों को भारी जुर्माने आयद किए। मज़ीद जानते हैं जाम समीर की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद का संजरपुर में सरप्राइज विजिट। एहसास राशन रियायत प्रोग्राम पर रजिस्टर्ड दुकानदारों को चेक किया। एहसास राशन प्रोग्राम पर कटौती करने वाले दुकानदारों को भारी जुर्माने किए और वारंट जारी करते हुए कहा कि अगर आइंदा ऐसा हुआ तो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और उसके बाद सब्जी और फल फरोशों की रेट लिस्ट भी चेक किए। ज़्यादा नर्ख पर सेल करने वालों को भी भारी जुर्माने किए और किराना की दुकानों को भी चेक किया। वहां पर ज़्यादा रेट पर एशिया खुदनोश सेल करने वाले दुकानदारों को भारी जुर्माने किए गए और वार्निंग जारी की कि अगर आइंदा ज़्यादा नर्ख पर फरोख्त एशिया खुदनोश फरोख्त की तो भारी जुर्माने और दुकान को सील कर दिया जाएगा। इस मौके पर दुकानदारों का कहना था कि हमने एशिया खुदनोश रेट लिस्ट के मुताबिक ही फरोख्त की हैं, हमें नाजायज़ जुर्माने किए गए। दुकानदारों ने कहा कि हुकूमत वक्त से हमारी ये अपील है कि मेरिट पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। अगर हमने नाजायज़ रेट दिए तो हमें जुर्माने किए जाएं, अगर नहीं तो हमसे नाजायज़ जुर्माने ना लिए जाएं। अवाम का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद का एशियाई खुदनोश की रेट लिस्ट चेक करना एक अच्छा अमल है। इस पर हमें बआसानी रेट लिस्ट के मुताबिक ही सामान मिल सकेगा। कैमरा टीम के साथ जाम ज़मीर, कोहिनूर न्यूज़, संजरपुर। दोस्त आशिक अवान की वालदा मरहुमा के एहसाल सवाब के लिए उनकी रिहाइश गाह पर ताज़ियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शुरकान मरहुमा के एहसाल सवाब के लिए दुआए मग़फ़िरत की।
इस मौका पर मिनहाजुल कुरान और पाकिस्तान अवामी तहरीक के मुश्तरका वफद ने शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की जानिब से इजहार ताज़ियत किया। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी और वफद का शुक्रिया अदा किया। PHA की क्लीन एंड ग्रीन लाहौर मुहिम के तहत DG PHA ज़ीशान जावेद के अहकामात पर शहर के मुख्तलिफ पार्कों में सफाई और सुथराई का काम जारी है। DG PHA ज़ीशान जावेद का कहना है कि अहमद बलोच पार्क, गार्डर टाउन, नादरा बेग पार्क, धर्मपुरा के पार्कों में सफाई का काम मुकम्मल किया गया। माल रोड पर ट्री प्लांटेशन के तहत लगने वाले दरख्तों और पौधों को भी देखभाल की जा रही है। PHA पार्क्स और ग्रीन बेल्ट के सफाई के अमल का काम रोजाना की बुनियाद पर किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि PHA ग्रीन वेस्ट को ज़ाया करने की बजाय इसको कारआमद बना रहा है। सफाई के अमल में इकट्ठी होने वाली ग्रीन वेस्ट को महफूज रखा जाता है। ग्रीन वेस्ट से खाद बनाने का काम मुख्तलिफ पार्क्स और नर्सरियों में जारी है। आरिफ वाला यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, सारिफीन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानते हैं रज़ा ज़ैदी की रिपोर्ट में। पेशान नया कानून नाफिज। चीनी की माहाना खरीदारी 5 किलो से कम करके 3 किलो, घी की खरीदारी 5 किलो से कम करके 3 किलो और आटे की खरीदारी 40 किलो से कम करके 20 किलो कर दी गई। जबकि सस्ता घी, आटा, चीनी खरीदने की खातिर पहले आप अपना शनाख्ती कार्ड 5566 पर मैसेज करें। वहां से रिप्लाई में आपको मैसेज कोड आएगा जिसमें दोहरा मेयार है। जो लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से मुंसलिक हैं, इनको घी 300 रुपए पर किलो और आम आदमी को वही घी 375 रुपए किलो। चीनी 70 रुपए, आम आदमी को 99 रुपए किलो। इसी तरह 10 किलो आटे का थैला बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से 400 रुपए में और वही 10 किलो आटे का थैला। SP इन्वेस्टिगेशन मुजीबुर रहमान के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें DPO इमरान शाहिद समेत दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं हरीपुर से राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। DPO हरीपुर की जानिब से हरीपुर से तब्दील होने वाले SP इन्वेस्टिगेशन मुजीबुर रहमान के एजाज में DRC हाल में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में एडिशनल SP हरीपुर मोहम्मद अयाज अवान, सर्कल SDPO इफ्तिखार अहमद सवाती, जमील रहमान, यासीन जंजुआ, DSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद ताहिर कुरैशी, DSP ट्रैफिक वार्डन शहजादी नौशाद गिलानी, तफ्तीशी स्टाफ और दीगर पुलिस अफसरान ने भी शिरकत की। DPO हरीपुर और पुलिस अफसरान ने अपने ख्यालात और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। SP इन्वेस्टिगेशन मुजीबुर रहमान ने हरीपुर में अपनी तैनाती को अपनी सर्विस का बेहतरीन हिस्सा करार दिया और जिला हरीपुर में फराइज सरंजाम देने वाले जुमला पुलिस अफसरान व जवानों की मेहनत और कारकर्दगी को सराहा। इस मौके पर उन्होंने हरीपुर की आवाम का भी शुक्रिया अदा किया। तकरीब के इख्तिताम पर DPO हरीपुर ने हरीपुर पुलिस की जानिब से अलविदाई शील्ड भी दी और इनकी खिदमात पर खिराज तहसीन भी पेश किया गया। दीगर अफसरान और पुलिस ने भी तारीफ पेश किए और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। राशिद महमूद, कोहिनूर न्यूज़, हरीपुर। इस्लामाबाद के निजी होटल में टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब की जानिब से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं सैयद उमर अवैस करदेसी की इस रिपोर्ट में। कि हम आटा खरीद नहीं रहे बल्कि आटे के लिए भीख मांग रहे हैं। आटा महंगा। 6 फरवरी से 12 फरवरी 2023 को मुनक्कद होने वाली 18वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट रैली की मुनासबत से इस्लामाबाद के निजी होटल में टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब की जानिब से पुरकशिश और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात ने शिरकत की। शुरकाए तकरीब को रैली के इनेकाद के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई, जिसमें बताया गया कि डेजर्ट रैली को पुरकशिश बनाने के लिए मुख्तलिफ स्पोर्ट्स सरगर्मियाँ मुनक्कद की जाएंगी, जिनमें टेंट, पैकिंग, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी, ताइक्वांडो, पैराग्लाइडिंग, रेस, ऑटो शो, गोट शो, कैमल राइड और दीगर स्पोर्ट्स सरगर्मियाँ शामिल होंगी। निजी होटल में मुनक्कदा तकरीब में पाकिस्तान के चारों सूबों की मुनासबत से इलाकाई गीतों पर रक्स भी पेश किया गया। इंटरनेशनल डेजर्ट रैली के मौका पर शुरका के लिए म्यूजिकल नाइट, क्वाली नाइट और फोक म्यूजिक भी पेश किया जाएगा। जबकि डेजर्ट रैली के कामयाब इनेकाद के लिए मैनेजमेंट कमेटी, इवेंट कमेटी, व्हीकल रिकवरी कमेटी, पार्किंग मैनेजमेंट कमेटी, टाइम मैनेजमेंट कमेटी, रजिस्ट्रेशन व्हीकल कमेटी, मेडिकल इमरजेंसी कमेटी और दीगर इंतजामी कमेटी पाकिस्तान के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म की यकीन में आपको बताएं कि हैदराबाद में भी सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरी ख़वार होने लगे। इस हवाले से मजीद जानेंगे दानिश शेख की इस रिपोर्ट में।
कि हम आटा खरीद नहीं रहे बल्कि आटे के लिए भीख मांग रहे हैं। आटा महंगा हो गया, मांगने में मजबूर हो गए, घर में रहते हैं सर्दी में। हम किस तरीके से जिए, हम आटा महंगा खरीद रहे हैं, ना वजीर आजम ना वजीर आला और ना ही इंतजामिया जो हैदराबाद की है वो इस पर कोई एक्शन ले रही है। सिंध के दीगर शहरों की तरह हैदराबाद में भी आटे का बुरहान शिद्दत इख्तियार कर गया। हैदराबाद के शहरी सस्ता आटा के लिए दर बदर भटकने लगे। आटे की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। आटे की फी किलो कीमत हैदराबाद में 140 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से आटा भी आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया है। शहरियों का कैन न्यूज से बात करते हुए कहना था कि सिंध हुकूमत कह रही है कि 65 रुपए किलो हम जो है वो आटा जो है ना शहरियों को फराहम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कहाँ पर, कौन सी चौराहों पर, जिस चौराहे पे जाके देखोगे ऐसा लगता है शहरी भीख मांग के आटा खरीद रहे हैं, पैसों का नहीं खरीद रहे हैं। ये 65 रुपए किलो का आटा सिर्फ और सिर्फ मुझे एक दिखावा नजर आ रहा है, और ये दिखावा नहीं बल्कि जिला इंतजामिया की और सिंध हुकूमत की अहली का मुंह बोलता सबूत। 40 लाख से जायद आबादी के अंदर शहरियों को सस्ता आटा फराहम करने का जो ये ड्रामा रचाया जा रहा है ना, मांगने आते हैं, आटा मोल से लेते हैं तो 150 रुपया किलो होते हैं, कहाँ से ले रहे हैं? गरीब लोग का एक टाइम पे खाना नहीं हो रहा है। हम किस तरीके से जिए, हम आटा महंगा खरीद रहे हैं, ना वजीर आजम ना वजीर आला और ना ही इंतजामिया जो हैदराबाद की है वो इस पर कोई एक्शन ले रही है। शर्म आनी चाहिए, डूब कर मर जाना चाहिए तुम लोगों को। इन तमाम तर सूरत हाल में मजदूर दिहाड़ीदार तबका फाका कशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया है। दूसरी जानिब हुकूमत और जिला इंतजामिया आटा फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। हैदराबाद के शहरियों का यही कहना है कि आटा हमारी बुनियादी जरूरत है, लेकिन महंगाई के इस दौर में ये भी कीमतें खरीद से बाहर हो गया है। हुकूमत सिंध और इंतजामिया को चाहिए जल्द से जल्द आटे की कीमतों को कम किया जाए ताकि हम मजीद फाका कशी से बच सकें। कैमरामैन अमित चांडी के साथ दानिश शेख, कोई टी स्टॉल्स पर शहरियों का रश, तंदूरी चाय फरोशों की चांदी हो गई। मजीद जानते हैं माजिद खटक की इस रिपोर्ट में। चाय हमारे कल्चर का हिस्सा, हमारे रिवायात और मेहमान नवाजी का अहम जुज़ समझा जाता है, लेकिन जिद्दत पसंदी ने जहां हमारे रिवायात में तब्दीली की है तो वहां रिवायती चाय की जगह तंदूरी चाय ने ले ली। क्वालिटी में और बड़े अच्छे माहौल में जो है और बड़े अच्छे मुनासिब पैसों में ये एक मौका हमें देते हैं। बच्चों के साथ हम लोग आके यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के एक अच्छे माहौल में चाय पी लेते हैं। हम लोग आके चाय पीते होते हैं, वहाँ पे आग में भी बैठ के मजा आ रहा है और यहाँ पे भी आके बहुत मजा आ रहा है। जबरदस्त चाय है, तंदूरी चाय। हमें दूर दूर जाना पड़ता था, अभी ये हकीमाबाद में हमें मिल रहा है, तो यहाँ पर बैठ के बड़ा मजा भी आता है और बच्चों के साथ यहाँ पर आउटिंग भी हो जाती है और साथ में चाय भी पी जाते हैं। नौशहरे के शहरी ने कुछ नया करने की ठान ली और तंदूरी चाय के नाम से कैफी पॉइंट्स बनाया। यहाँ पे चाय बनती है, फिर ये मटके में इसको जोश दिया जाता है और इसके बाद मटके में ही सर्व किया जाता है। तो इसके अलावा इसमें एडिंग ये होता है कि काजू होता है, बादाम होता है, पिस्ता होता है, बालाई होती है, वो डाल के सर्व कर देते हैं। ये स्पेशलिटी, बाकी इन्वायरमेंट है, बोनफायर है, म्यूजिक है। के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।